کیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ وہ ماں جس کی دعاؤں سے عرش ہلتا ہے، وہ بہن جو رشتوں کی آبرو اور اعتبار ہے، وہ بیٹی جس کی آمد کو اللہ کے رسول نے گھر کی رحمت اور جنت کی بشارت قرار دیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی؟ کیا عورت ہونا کوئی خطا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے جسے آج کی چکا چوند بھری دنیا فراموش کر چکی ہے۔ اکثر جب نصیحت کی محفلیں سجتی ہیں تو انگلیاں عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس شوہر سے بھی سوال ہوگا جس نے اپنی بیوی کے حقوق ادھیکار کو پامال کیا؟ اس باپ کا بھی محاسبہ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو دین کی راہ نہ دکھائی؟ اس بیٹے کی بھی پکڑ ہوگی جس کی اونچی آواز نے بوڑھی ماں کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، یہ انصاف کا دین ہے۔ یہاں جتنا مقام عورت کا ہے اتنی ہی بھاری ذمہ داری مرد کے کندھوں پر رکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو گھر کا حاکم نہیں بلکہ نگہبان، ذمہ دار بنایا ہے۔ حصہ اول، مردانگی کا اصلی معیار۔ یہ پیغام صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس روح کے لیے ہے جو کل قیامت کے دن خدا کے حضور سرخرو ہونا چاہتی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ صرف جسم نہیں بلکہ انسان کی امیدوں اور سکون کو خاک کر دیتی ہے۔ حصہ اول، عیدگاہ کا وہ تاریخی منظر۔ مدینہ کی مقدس فضاؤں میں عید کی خوشبو رچی بسی تھی۔ فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے معطر تھیں۔ عنوان: سفر آخرت اور قبر کی پہلی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا سناٹا پوری کائنات پر طاری تھا۔ دنیا سکون کی نیند سو رہی تھی۔ کوئی اپنی ملازمت کے خواب دیکھ رہا تھا تو کوئی اپنے کاروبار کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ عورت کی اصلی عزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی رفتار بدل گئی، تہذیبوں کے رنگ بدل گئے اور انسانوں کے نظریے بدل گئے، مگر ایک سوال آج بھی معلق لٹکا ہوا ہے کہ آخر عورت کی حقیقی عظمت کیا ہے؟ کیا نمائش حسن میں عزت ہے؟ کیا زمانے کی جھوٹی واہ واہی میں عزت ہے؟ نہیں، اسلام نے عورت کو صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک نسل کی محافظ، رکشک اور پورے گھر کی رحمت قرار دیا ہے۔ اگر عورت نیک بخت ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہے، اور اگر وہ دین سے دور ہے تو گھر کا سکون دھوئیں کی طرح اڑ جاتا ہے۔ حصہ اول، جہالت کے اندھیرے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ دور تھا جب عرب کی زمین بیٹیوں کے بوجھ سے کانپتی تھی۔ معصوموں کو زندہ در گور دفن کر دیا جاتا تھا، مگر پھر عرش سے رحمت برسی اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مگر اسی خاموشی کے درمیان ایک گھر میں موت کا فرشتہ دستک دے چکا تھا۔ وہ انسان جو چند لمحے پہلے اپنوں کے درمیان مسکرا رہا تھا اب بیزان پڑا تھا۔ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور زبان خاموش ہو چکی تھی۔ اپنوں کا شور، سسکیاں اور وہ رلا دینے والا منظر، مگر اب پکارنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سچ ہے، موت کبھی دستک دے کر نہیں آتی۔ حصہ اول، روح کی پرواز اور نزا کا عالم۔ جب جسم سے روح کے جدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ سید المرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نیک ہو تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، مگر گنہگار کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹے دار تار سے ململ کا کپڑا۔ انسان سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنوں کی بے بسی، گھر والوں کے آنسو۔ وہ چیخنا چاہتا ہے کہ مجھے تنہا نہ چھوڑو، مگر موت کے فرشتے اسے عالم برزخ کی طرف لے جا چکے ہوتے ہیں۔ حصہ دوم، جنازہ اور 2 گز کفن۔ کل تک جو شخص ریشمی لباس اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ کا شوقین تھا، آج اس کے بدن پر صرف 2 سفید چادریں ہیں۔ جس چہرے کے غرور میں وہ سر اٹھا کر چلتا تھا، آج وہ چہرہ خاک کی طرف منتظر ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے اور لوگ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو اس وقت انسان کے ساتھ نہ اس کا بینک بیلنس جاتا ہے، نہ اس کی ڈگریاں، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ حصہ سوم، قبر کی دہلیز اور پہلی رات۔ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا جب بیٹا اپنے باپ کو، بھائی اپنی بہن کو اور دوست اپنے عزیز کو مٹی کے حوالے کر کے پیٹ پھیر لیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ قبر کی وہ پہلی رات، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی ہمدرد۔ پھر منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں اور سوال ہوتا ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے دنیا میں رب کو پہچانا وہ کامیاب ہو گیا، مگر جو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا اس کی زبان ساتھ نہیں دے گی۔ حصہ چارم، حسرت اور پچھتاوا۔ قبر کے اس اندھیرے میں انسان کو اپنی کوتاہیاں یاد آئیں گی۔ اسے یاد آئے گا کہ کیسے مؤذن، اذان دینے والا پکارتا رہا مگر وہ دنیا میں مگن رہا، کیسے ماں بلاتی رہی اور وہ موبائل میں گم رہا۔ وہاں انسان گڑ گڑائے گا، تارانکن یا اللہ،
मुझे एक मौका दे दे, मैं दुनिया में जाकर नेक अमल करूँगा। मगर अफसोस, तब अमल का वक्त खत्म और हिसाब का वक्त शुरू हो चुका होगा। हिस्सा पंचम, जन्नत का बाग या जहन्नम का गड्ढा। कब्र जालिम के लिए तंग हो जाती है और नेकों के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कब्र के अजाब की आवाज़ें सुन लेते तो खुशियाँ मनाना छोड़ देते। जो माँ बाप का फरमाबरदार रहा, जिसने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बनाया और मखलूक खुदा के साथ नरमी की, उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और फरिश्ते कहते हैं, सो जाओ, जैसे दूल्हा सुकून से सोता है। इख्तितामिया, बेदारी का वक्त। दुनिया एक धोखा है, एक शराब है। आज जो चेहरे हसीन हैं, कल मिट्टी की खुराक होंगे। हकीकी कामयाबी पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को संवारना है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आज आपकी आखिरी रात हो, अगर सुबह लोग आपकी कब्र खोद रहे हों, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके माँ बाप आपसे राजी हैं? क्या आपका दामन तौबा से पाक है? क्या नमाजों का नूर आपके साथ है? दुआ, या रब्बुल आलमीन, हमें कब्र के अजाब और रुसवाई से पनाह अता फरमा, हमारी कब्रों को नूर से भर दे। हुजूर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारा मुकद्दर फरमा और हमें हकीकी मुसलमान बनकर मरने की तौफीक दे, आमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल पर चोट की हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। मुमकिन है किसी का दिल बदल जाए और वो मुसल्ले पर गिरकर तौबा कर ले। आपने उस दौरे जहालत में ऐलान फरमाया, जिसने अपनी बेटियों की बेहतरीन परवरिश की और उन्हें नेक बनाया, वो रोज़े महशर क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां पास होती हैं। सोचिए, जिस बेटी को जिल्लत समझा जाता था, उसे सरकार ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिफाकत साथ का जरिया बना दिया। हिस्सा दोम, माँ का मकाम और हुजूर शोन की तालीम। इस्लाम में औरत का मुक़द्दस तरीन रूप माँ है। एक सहाबी ने हुजूर रहमत आलम शिंग की बारगाह में हाजिर होकर पूछा, एस्ट्रिस्क या रसूलुल्लाह शिंग, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। यही वजह है कि फरमाया गया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मगर आज की औलाद दुनिया की चकाचौंध में इतनी मशरूफ है कि उस माँ के सफेद बालों और नम आँखों की पुकार भी नहीं सुनती, जिसने अपनी रातों का सुकून उसकी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर दिया। हिस्सा सोम, बेटी रहमत की ठंडी छाँव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहिबजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि जब वो तशरीफ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम सम्मान में खड़े हो जाते, उनके माथे को चूमते और अपनी जगह पर बिठाते। आज जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, वो जान लें कि बेटी तो वो फूल है जिसकी महक से घर में फरिश्ते उतरते हैं। वो बाप के दिल का सुकून और खुदा की खास रहमत होती है। हिस्सा चारुम, हिजाब कैद नहीं, हिफाजत है। आज की दुनिया कहती है कि पर्दा आज़ादी की राह में रुकावट है, मगर याद रखिए, हीरा जितना कीमती होता है, उसे उतने ही पर्दे और हिफाजत में रखा जाता है। इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म उसे छुपाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की आलूदा गंदी नजरों से उसे महफूज रखने के लिए दिया है। पर्दा औरत की पाकीज़गी का नूर है। हिस्सा पंचम, आज की औरत का सिसकता हुआ दर्द। आज की औरत अक्सर बाहर से मुस्कुराती है, मगर उसका दिल अपनों के तानों और बेकदरियों से छलनी होता है। वो माँ, बीवी और बेटी के रूप में अपनी जान लड़ा देती है, मगर बदले में उसे सिर्फ खामोश आंसू मिलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में औरतों के बारे में खास वसीयत फरमाई थी। जो मर्द अपनी बीवी की कद्र नहीं करता, वो याद रखे कि वो अल्लाह की दी हुई अमानत की तौहीन कर रहा है। टूटा हुआ दिल जब अर्श पर दस्तक देता है तो जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। हिस्सा शशम, नेक औरत और आखिरत का सफर। खूबसूरती सिर्फ चेहरों में नहीं, किरदार और हया में होती है। नेक औरत वो है जो अपने घर को अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर रखे। क़यामत के दिन ये दुनियावी शोहरत और चेहरे की चमक काम नहीं आएगी, वहाँ सिर्फ वो नेकियां और सब्र काम आएगा जो उसने अल्लाह की रजा के लिए किया। इख्तितामिया, एक हिला देने वाली नसीहत। जरा सोचिए, अगर आज आपकी माँ की दुआएं आपसे छिन जाएं, या आपकी बीवी आपके जुल्म से टूटकर खुदा के सामने रो पड़े, तो क्या आप कल क़यामत में नबी पाक शिन का सामना कर पाएंगे? औरत खिलौना नहीं, वो अल्लाह की रहमत है। जिस घर में औरत की आंखों में आंसू होते हैं, वहाँ से बरकत रुखसत हो जाती है, और जिस घर में उसकी इज्जत होती है, वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। दुआ, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें अपनी माँओं, बहनों, बीवियों और बेटियों की वैसी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा जैसा तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हमारी औरतों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी और हज़रत खदीजा रज़ी जैसा पाक किरदार अता फरमा, आमीन। अगर ये पैगाम आपकी रूह तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है
آپ کی ایک کوशिश किसी की सोच बदल दे और किसी घर में फिर से खुशियां लौट आएं। नमाज के बाद हुजूर रहमत आलम औरतों की जानिब तशरीफ ले गए और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका व खैरात की कसरत करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। यह सुनकर सहाबियत रजी के दिल दहल गए। उन्होंने निहायत अदब से सवाल किया, एस्ट्रिस्क या रसूल अल्लाह, आखिर ऐसा क्यों? तब आपने वो राज खोला जिसमें पूरी उम्मत की इस्लाह सुधार छिपी थी। हिस्सा दोम, नाशुक्री और ज़ुबान की आफतें। हुजूर ने फरमाया कि इसके दो बड़े सबब हैं। 1. कसरत लानत, ज़ुबान पर बात बात पर शिकवा और बद्दुआ होना। 2. शौहर की नाशुक्री, अगर शौहर उम्र भर एहसान करे और एक बार कोई कमी रह जाए तो औरत कह देती है, मैंने तुझसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। मेरे अजीज़ों, इस्लाम ने माँ के कदमों तले जन्नत रखकर औरत को वो अजमत दी जो किसी तहजीब ने नहीं दी, लेकिन जहाँ रुतबा बड़ा होता है वहाँ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। ये नसीहत डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए थी। हिस्सा सोम, जहन्नम की होलनाकी और तौबा का डर। जरा सोचिए, दुनिया की आग के एक अंगारे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो जहन्नम जिसकी आग को 1000 साल तक दहकाया गया है उसका सामना कैसे होगा? वहाँ का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, मगर अल्लाह की रहमत मायूस नहीं करती। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। एक सच्चा आंसू, एक शर्मिंदगी का एहसास और अपनी इस्लाह का पक्का इरादा अल्लाह के गजब को रहमत में बदल सकता है। हिस्सा चारुम, नेक औरत और मुकम्मल मोमिन की पहचान। नेक औरत वो नहीं जिसका चेहरा खुशनुमा हो, बल्कि वो है जिसका किरदार और अखलाक मुअत्तर हो, जो अपने घर को जिक्र इलाही से जन्नत बना दे। और याद रहे, ये पैगाम मर्दों के लिए भी एक आईना है। आप ऊन ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। इख्तितामिया, कब्र की तन्हाई और आखिरी सफर। एक दिन मौत का फरिश्ता हमारे सरहाने होगा। न दौलत काम आएगी, न ये दुनियावी हुस्न। कब्र के अंधेरे में सिर्फ अमल का नूर साथ देगा। क्या हम उस रब को मुंह दिखाने के काबिल हैं? क्या हमारी जुबानें जिक्र इलाही की पाबंद हैं या गीबत की? क्या हमारे रिश्ते अल्लाह की रजा के लिए हैं? आज वक्त है संभल जाने का। सजदों में गिरकर अपनी आखिरत संवार लीजिए, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। दुआ, या रब्बुल आलमीन, हमें जहन्नम के अजाब से पनाह अता फरमा। हमारी औरतों को हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अगर ये हक बात आपके दिल की दस्तक बनी हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाएं। मुमकिन है आपकी वजह से किसी की तौबा कबूल हो जाए। गफलत की नींद और वालिदैन की पुकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का पिछला पहर था। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। एक बूढ़ी माँ अपने तन्हा कमरे में मुसल्ले पर बैठी थी। आंखें अश्कबार थी और कांपते हाथों में वो पुरानी तस्वीरें थी जिनमें कभी खुशियों की रौनक हुआ करती थी। उसने अपने लाल की तस्वीर सीने से लगाई और सिसकते हुए कहा, तारांकन, या अल्लाह, एक वक्त था जब ये बच्चा मेरे आंचल के बिना सोता न था। आज महीनों गुजर जाते हैं, उसे मेरी खैरियत पूछने की भी फुर्सत नहीं। क्या हम भूल गए कि नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, वो शख्स तबाह व बर्बाद हो गया। हिस्सा अव्वल, माँ की वो बेमिसाल कुर्बानियाँ। याद करो वो दिन जब तुम्हें हल्की सी खरोंच भी आती थी तो माँ का कलेजा मुंह को आता था। तुम सोते थे मगर वो जागती थी। तुम बीमार होते थे तो वो अल्लाह के हुजूर झोलियाँ फैलाकर कहती थी, तारांकन मौला, मेरे बच्चे की तकलीफ मुझे दे दे मगर उसे शिफा अता फरमा। आज वही माँ एक निवाले और दो मीठे बोल के लिए तरस रही है। क्या यही सिला है उस बेपनाह मोहब्बत का? याद रहे, मोबाइल के नोटिफिकेशन तो हमें सुनाई दे जाते हैं मगर माँ की दबी हुई सिसकियाँ हम नहीं सुन पाते। हिस्सा 2, कब्र की तन्हाई और हकीकत मौत। इंसान दुनिया की रौनक में इतना खो गया है कि उसे अपनी मौत याद नहीं। एक दिन वो आएगा जब तुम्हें कब्र के अंधेरे में उतारा जाएगा। वो दोस्त, वो रिश्तेदार और वो औलाद जिसके लिए तुमने दीन को भुलाया, सब मिट्टी डालकर वापस चले जाएंगे। वहाँ न कोई सिफारिश होगी, न कोई ओहदा। वहाँ सिर्फ अल्लाह की रहमत और वो नेक आमाल काम आएंगे जो तुमने खौफे खुदा में किए होंगे। अगर माँ बाप की आह साथ ले गए तो याद रखना कब्र की तन्हाई बहुत होलनाक होगी। हिस्सा सोम, मजलूम की आह और रब्बे जुल्म का हिसाब। चाहे वो बेटी हो जो ससुराल के तानों से टूट रही है या वो बीवी जिसके जज्बात को शौहर के जूतों तले रौंदा गया, याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के साथ हुस्न ए सुलूक की बार बार ताकीद फरमाई है। अगर तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह की आंख से आंसू निकला तो वो आंसू अर्श तक जाता है।
और जब अल्लाह इंसाफ करने पर आता है तो जालिम को कहीं पनाह नहीं मिलती। जुल्म सिर्फ हाथ उठाना नहीं, बल्कि किसी के दिल को लफ्जों से छलनी करना भी है। हिस्सा 4, तौबा का दरवाजा और इलाही पैगाम। गुनाह चाहे पहाड़ों जितने ऊंचे क्यों ना हो, मेरे रब की रहमत उससे कहीं ज्यादा वसी बड़ी है। अल्लाह आज भी पुकार रहा है। तारांकन है कोई तौबा करने वाला, है कोई माफी मांगने वाला। एक सच्चा सजदा, एक नदामत, शर्मिंदगी का आंसू तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सैयद उल मुरसलीन शू ने फरमाया कि अल्लाह उस जवान से बहुत मोहब्बत करता है जो अपनी जवानी में तौबा करता है। इख्तितामिया, क्या हम तैयार हैं? जरा सोचिए, अगर आज मलकुल मौत का फरिश्ता आपके सिरहाने आ खड़ा हो, क्या आपकी माँ आपसे राजी है? क्या आपके वालिद ने आपको माफ कर दिया है? क्या आपकी नमाजें मुकम्मल हैं? दुनिया एक सराय है, यहाँ से सबको कूच करना है। चेहरे की चमक मिट्टी हो जाएगी, मकानों पर दूसरों के नाम होंगे। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल शं की इताअत, फरमाबरदारी और मखलूक की खिदमत है। दुआ, या अल्लाह, हमें अपने वालिदैन की आंखों का नूर बना, उनके लिए सदका ए जारिया बना, हमें जुल्म से बचा और अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। अगर ये बयान आपकी रूह की दस्तक बना हो तो इसे अपनों तक पहुँचाएं। क्या पता आपकी वजह से कोई बेटा अपनी माँ के गले लग जाए और खुदा आपकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि सख्ती, गुस्सा और दबदबा ही मर्दानगी है, मगर सैयद उल मुरसलीन शिन ने इस गुमान को तोड़ते हुए फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि असली बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स खुद पर काबू पा ले। सोचिए, जो शख्स बाहर दुनिया के सामने नरम है मगर अपने घर की चारदीवारी में बीवी बच्चों पर कहर बनकर टूटता है, क्या वो मर्द कहलाने के लायक है? हरगिज नहीं। असल मर्द वो है जिसके घर दाखिल होने से बच्चों के चेहरे खिल उठें, ना कि उनके दिल खौफ से कांपने लगें। हिस्सा 2, अमानत में खयानत न करो। निकाह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। एक बेटी अपना आशियाना, अपना बचपन और अपने माँ बाप का साया छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे पर आती है। रोटी, कपड़ा और मकान तो हर कोई दे देता है, मगर औरत को सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत की प्यास होती है। क्या आप जानते हैं, जिस घर से मोहब्बत रुखसत हो जाए वो घर नहीं बल्कि एक वीरान कब्रिस्तान बन जाता है। बीवी के जज्बात को समझना और उसकी थकान में उसका साथ देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सुन्नत रसूल है। हिस्सा 3, उसवाए रसूल शर और घर का माहौल। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ सलूक सीखना चाहता है तो उसे आकाए दो जहां की सीरत देखनी चाहिए। आप हौन अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक फरमाते, घर के कामों में हाथ बटाते, यहाँ तक कि अपने फटे हुए कपड़े खुद सी लेते। हजरत आयशा रजी जिस जगह से पानी पीती, आप शौ मोहब्बत में उसी जगह लब लगाकर पानी पीते। आज का मर्द कहता है, मैं घर का काम क्यों करूं? मगर क्या वो भूल गया कि कायनात का सबसे बड़ा इंसान अपने घर में कितना सादा और नरम था? हिस्सा 4, खामोश जुल्म और टूटे हुए दिल। याद रखिए, जुल्म सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं है, बात बात पर ताने देना, उसकी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना, दिन भर की उसकी मेहनत को हकीर समझना, ये सब रूहानी कत्ल है। और याद रहे, एक मजलूम औरत की आंख से निकला हुआ आंसू अर्श ए इलाही तक पहुंचता है। डरिए उस दिन से जब ये आंसू आपकी तबाही का सबब बन जाएं। हिस्सा 5, वालिदैन की खिदमत और हलाल रिस्क। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो बीवी के मुंह में अपनी माँ को तन्हा छोड़ दे या बाप की दुआओं से महरूम रहे। माँ का दिल दुखाना गोया अपनी जन्नत के दरवाजे बंद करना है। साथ ही अपनी औलाद के पेट में हराम का लुकमा न डालें। हराम की कमाई से महलों में सुकून नहीं आता, बल्कि औलाद नाफरमान हो जाती है और घर की बरकत उड़ जाती है। मर्द की असली कमाई उसकी नेक औलाद और हलाल रिस्क है। इख्तितामिया, वक्त का तकाजा, एक दिन ये सांसें थम जाएंगी, न ये शान व शौकत काम आएगी, न ये झूठा गुरूर। कब्र की तन्हाई में आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी अमानतों, घरवालों के साथ क्या सलूक किया। आज वक्त है तौबा करने का। अपने अखलाक को संवारिए, अपनी जुबान को नरम कीजिए, अपने घर को नमाज और जिक्र इलाही का मरकज बनाइए, क्योंकि जो अपने घर वालों के लिए अच्छा नहीं, वो खुदा की नज़र में भी अच्छा नहीं हो सकता। दुआ, या अल्लाह, हमें अपने घर वालों के लिए रहमत बना, जहमत नहीं। हमें अपनी बीवियों, बच्चों और माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से किबर और गुस्से को निकाल दे और हमें हकीकी मोमिन बना, आमीन। अगर ये सदाए हक आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरे भाइयों तक जरूर पहुँचाएं। मुमकिन है किसी का उजड़ता हुआ घर आपकी एक कोशिश से आबाद हो जाए।